بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آسما شیرازی. پروگرام ہے فیصلہ آپ کا. آج کے اس پروگرام میں ظاہر ہے کہ سیاسی بات چیت جو کہ بہت زیادہ اس وقت ہو رہی ہے اور بڑی آج مزیدار خبریں ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. مزیدار یوں کہ بہت سی حیران کن خبریں ہیں. وہ حکومت جو کہ اپوزیشن کو گزشتہ کئی دنوں سے کہہ رہی تھی کہ NRO نہیں دوں گا, جانے نہیں دوں گا, شہباز شریف کو وطن چھوڑنے کی اجازت نہیں دیں گے, آج جو ہے وہ ان ایکسپیکٹڈلی غیر متوقع طور پر سپریم کورٹ کے اندر جو کہ آج سماعت تھی شہباز شریف کے حوالے سے, جو ان کا نام بلیک لسٹ میں ڈالا گیا تھا, اس کے حوالے سے جو اپیل دائر کر رکھی تھی, اس کے اوپر آج حکومت نے اپنی اپیل جو ہے, جو ان کو اجازت ملی تھی جانے کی, اس کے خلاف اپیل جو ہے وہ واپس لے لی. یعنی کہ عدالت نے جو کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب جو ہے ان کو باہر جانے کی اجازت دی جائے, اور جس کے اوپر حکومت نے بہت ریئیکٹ کیا تھا, وہ حکومت نے اپنا مدعا واپس لے لیا. اور بڑی دلچسپ سماعت ہے جو آج کاروائی کورٹ کی لکھی جا رہی ہے, بتائی جا رہی ہے اس کے حوالے سے. مثلاً یہ کہ تھوڑے سے آپ کو بتا دیتے ہیں ہم اس کے پوائنٹس جو آج ریکارڈ پیش ہوا تھا پچھلی سماعت کے بعد. اس میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس سجاد علی شاہ صاحب اس کی سماعت کر رہے تھے. اس میں انہوں نے یہ کہا, جو سوالات پوچھے انہوں نے یہ کہا کہ کیا شہباز شریف کا کیس سسٹم کے تحت مقرر ہوا تھا یا خاص طور پر سماعت ہوئی. اس پر رجسٹرار نے جو ہے وہ ہائی کورٹ نے وہ بتایا انہوں نے کہ درخواست اعتراض کے لیے مقرر ہوئی تھی, لیکن فیصلہ ہوا کہ اعتراض پر درخواست کے ساتھ ہی فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا جائے گا. رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جمعے کو 9:30 بجے اعتراض لگا اور 11:30 بجے جو ہے وہ کیس کی سماعت ہوئی. اس پہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہائی کورٹ میں اٹارنی جنرل کا جو آفس تھا اس کو درخواست یا جواب جمع کرنے کا جو وقت تھا وہ نہیں دیا گیا. اس پہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے کہا کہ حکومتی وکیل کو ہدایات لینے کے لیے صرف 30 منٹ دیے گئے. ایک سال کے اندر کتنے مقدمات ہیں جو جمعے کے دن جس کی سماعت 12 بجے ہوئی. یہ بتایا جائے کہ کتنے مقدمات میں یک طرفہ ریلیف ملا, یعنی کہ اٹارنی کا جواب لیے بغیر جو ہے وہ ریلیف ملا. اس پر ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف کا ہائی کورٹ نے نام ہی نہیں پوچھا کہ وہ کس لسٹ میں ان کا جو نام ہے وہ ڈالا گیا. اس پہ اٹارنی جنرل کی جب باری آئی اور ان سے ان کے موقف کی بات کی گئی تو انہوں نے یہ کہا کہ شہباز شریف نے چونکہ ہائی کورٹ سے اپنی درخواست واپس لے لی ہے حکومت کے خلاف توہین عدالت کی, لہٰذا ہم اپنی درخواست پر اصرار نہیں کرتے ہیں. اس پہ جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ تو بات ہی ختم کر دی آپ نے, یہ تو معاملہ ہی نمٹا دیا آپ نے, اور یوں یہ جو معاملہ تھا وہ نمٹا دیا گیا. خبر تو یہی ہے کہ حکومت نے شہباز شریف کے باہر جانے پہ پابندی کے خلاف جو اپیل تھی وہ واپس لے لی ہے. لیکن کیوں لی ہے, اور دوسری طرف شہباز صاحب نے بھی توہین عدالت کی کاروائی جو ہے وہ ختم کر دی ہے. تو یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, ڈیل تو ہم نہیں کہہ سکتے, یہ مکمکا ہوا ہے. یہ کیا ہوا ہے؟ NRO ہے. اگر NRO ہے تو حکومت نے یہ NRO کیوں دیا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے. شہزاد اکبر صاحب نے کچھ آج اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ اپوزیشن یعنی کہ شہباز شریف صاحب نے اپنی درخواست واپس لی ہے. تاہم یہ بھی دوسری جو آج سپریم کورٹ کی کاروائی ہے وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی. تو دونوں طرف کی کاروائیاں جو ہے وہ آج ہوئی ہیں. یہ تو ایک اہم بات تھی. اب یہ امپورٹنٹ ہے کہ شہباز شریف صاحب اب لندن کب جا رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے اب ECL پہ نام ہے, ECL کے نام نکلوانے کے لیے وہ حکومت کو درخواست دیں گے, حکومت یا کورٹ جائیں گے, یہ ابھی دیکھنا باقی ہے. دوسری جانب جو بجٹ سیشن آ رہا ہے اس کے اوپر بہت اہم ڈیولپمنٹس ہیں اور اپوزیشن ابھی تک منتشر ہے, حکومت منقسم ہے, اور اس کے اوپر جہانگیر ترین صاحب نے حال ہی میں ایک نیا تھریٹ بھی دیا ہے حکومت کو. اپوزیشن اس کا فائدہ اٹھانے کو تیار نہیں ہے. بجٹ سیشن میں مالیاتی بل کے خلاف کیا اپوزیشن اکٹھی ہوگی نہیں ہوگی, یہ بہت اہم سوال ہے جس کے اوپر بات کرنی ہے. کل بلاول صاحب نے اس پہ بات کی تھی اور انہوں نے بجٹ سیشن سے پہلے کی جو اسٹریٹجی تھی یا بجٹ سیشن کی اس پہ اوپر بھی زور دیا تھا. ذرا کوئکلی وہ سن لیجئے, اور اس کے بعد حمزہ شہباز صاحب نے آج پیپلز پارٹی کی فیور میں بہت اہم سٹیٹمنٹ دیا ہے, وہ سنوائیں گے. پہلے بلاول بھٹو. کل کا ملاقات تھا, مجھے اس ملاقات کے بعد وہ کلیئرٹی نظر نہیں آیا, ان کا اسٹریٹجی کا کلیئرٹی نظر نہیں آیا, ان کا پروگرام کا کلیئرٹی نظر نہیں آیا. وہ شاید کنفیوژن کا شکار ہے, شاید ڈویژن کا شکار ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ پارلیمان کے اندر ہم یہ کنفیوژن نہ دکھائیں, کانٹرڈکشن نہ دکھائیں, اور سب مل کے اس PTIMF بجٹ کے خلاف اپنا ووٹ استعمال کریں.
अच्छा, परसों उन्होंने ये स्टेटमेंट दी 30 मई को, और उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि अभी भी सब इकट्ठे हो जाएं और इस IMF के बजट के खिलाफ जो है वो मुश्तरका लाएमल इख्तियार करें। परसों जो मीटिंग हुई थी PMLN की मुशावरती मुफाहमत और मुजाहमत के बयानिए के ऊपर, जिसपे मियां साहब ने अपना फैसला महफूज किया है, वो फैसला कब आना है ये अभी हम मुंतजिर है उसके ऊपर, वो उसमें भी हमजा शहबाज साहब ने खुसूसी परमिशन पे कुछ अहम बातें की थी, मगर आज ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने कुछ बातें की हैं पीपल्स पार्टी के साथ मुफाहमत के लिए, वो जरा सुन लीजिए। उतार चढ़ाव ताल्लुकात में आते रहते हैं, लेकिन सियासत में किसी पार्टी के लिए दरवाजे बंद नहीं किए जाते। पीपल्स पार्टी की अपनी पार्लियामान में एक अपना जो है उसकी हैसियत है, सियासत में सबको साथ लेके चलना पड़ता है। अगर कोई ऐसे इख्तलाफात हैं तो वो भी वक्त के साथ दूर हो जाते हैं। बहुत अहम स्टेटमेंट है। हमजा शहबाज साहब ने आज मुफाहमत के उस बयानिए को, जो कि उनके वालिद शहबाज शरीफ साहब बार बार कहते चले आ रहे हैं, ऑन द रिकॉर्ड बात कर दी है। तो अब करना क्या है, लंदन जाना है शहबाज साहब ने, वहां पे कौन सा मुफाहमत का या कौन सा बयानिया लेके वो वापस आएंगे, बहुत अहम होगा देखना। इसके ऊपर भी बात करेंगे, और बजट के ऊपर तो हमने करनी है कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं अगले 5 साल भी उनके हैं, और खुशखबरियां वो सुनाते, कल हमें सुनाई दिए। कितनी खुशखबरी अवाम के लिए होगी, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब जुबैर साहब, मोहम्मद जुबैर साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के बहुत करता धरता अहम रहनुमाओं में से हैं, तर्जुमान हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के बहुत बहुत शुक्रिया, साबिक गवर्नर भी हैं। सर, हमारे साथ है जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब, जो कि रुकने कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और स्पोक्स पर्सन में से हैं गवर्नमेंट के। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। मोहतरमा नाज बलोच साहिबा भी बैठा ही चाहती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकने कौमी असम्बली है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आने का। सबसे पहले जुबैर साहब, अब ये जो आज हुकूमत ने दरखास्त वापस ले ली है, ये यू टर्न है, मुकमुका है, डील है, ये NRO है, क्या है? एक तो बात बिल्कुल क्लियर है, आपकी जितने भी जो आपने इंट्रोडक्शन कराया, तो ऐसे लगता है कि PTI इज द मोस्ट इररेलेवेंट पॉलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान। उनका कोई ताल्लुक ही नहीं, सिर्फ वो किस हिसाब से ताल्लुक है। आपका मैं देख रहा था ना, खित्ते में सबसे ज्यादा महंगाई पाकिस्तान में, मतलब वो कारनामे तो हैं, उस पर तो हम मानते हैं इनको और सलाम पेश करते हैं कि इनकी जो इनकॉम्पिटेंस है वो तो पूरे खित्ते में डबल से ज्यादा पाए। तो ये भी मैं आपको बता दूं, अफगानिस्तान से भी, अफगानिस्तान में कुछ 4.5% है। मैंने आज ट्वीट भी किया, और पाकिस्तान में माशाल्लाह 10.9%। अच्छा, एनीवेज, हुकूमत ने जो फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट, देखें इसको थोड़ा सा NRO, मुझे नहीं पता हुकूमत क्या सोच के उन्होंने ये किया है, दे शुड हैव पुश्ड इट, बट हुकूमत का और का भी मौकिफ और PMLN का मौकिफ एक बड़ा सिंपल है। हम गए थे कॉन्टेम्प्ट में हाई कोर्ट में कि उनको क्यों रोका था शहबाज शरीफ साहब को, इन स्पाइट ऑफ हाई कोर्ट के क्लियर ऑर्डर्स थे। तो हमने वो विड्रॉ किया, और हमने वो विड्रॉ किया इस बेसिस पर कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम जा रहे हैं उन ऑफिसर्स और उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने रोका था। हालांकि जाहिर सी बात है, ऑर्डर तो इमरान खान की तरफ से आया होगा कि जी इनको नहीं जाने देना, तो कसूर इमरान खान का, शहजाद अकबर का है, और सजा आप किसी और को दिलवाएं तो वो थोड़ी सी ज्यादती वाली बात। तो आपने अफसरान को नॉमिनेट किया था? जी, उसके अंदर हमने कहा था कि भाई, या उसको करना चाहिए? नहीं, हमने उनको किया था जिन्होंने रोका था। तो अब मसला ये है, पॉइंट ये है कि हमने विड्रॉ कर लिया। जिस तरह से भी सुप्रीम कोर्ट में चलता है और हाई कोर्ट में चलता है, एक चीज तो तय है कि इन्होंने सब्सिक्वेंटली उनको ECL में डाल दिया, पहले नहीं थे। तो आज जो सिचुएशन है वो आप उसको लड़ते कोर्टों में या नहीं लड़ते, ECL में नहीं ECL के बारे में नहीं आप बहस कर रहे थे, हम तो बहस ये कर रहे थे कि जी आपने जाने क्यों नहीं दिया। अच्छा, पहले आप और ये कहे थे कि वापस ली या इन्होंने पहले ली? हमने पहले वापस ली। आपने पहले ली? जी, खैर सगाली का और मुफाहमत का आपने? नहीं, हम अच्छा। एक तो आप लोग क्या चाहते हैं कि बंदूकें लेके निकल जाएं, लड़ते रहे। ये तो मुझे प्राइम मिनिस्टर की कुछ आवाजें सी आ रही, उन्होंने भी इस तरह का कोई एक स्टेटमेंट दिया था इंडिया के खिलाफ। नहीं, अब वो मैं सिर्फ कंक्लूड करने के लिए ECL में, जाहिर सी बात है शहबाज शरीफ साहब को बाहर जाना है, और जब तक उनका नाम ECL में होगा तो वो नहीं जा सकते। तो अब चूंकि ये आज ही की डेवलपमेंट है, तो हमारे लॉयर्स उसको स्टडी कर रहे हैं कि ECL में हटाने के लिए जो भी पॉइंट्स होंगे वो क्या पॉइंट्स होंगे, और उसके हिसाब से। मगर मुझे जुबैर साहब, इस बड़ी बात तो ये है कि जब हुकूमत ने अपील वापस ले ली, चले आपकी तरफ से मुफाहमत कोई नई बात नहीं है,
मगर इनकी तरफ से अपील वापस लेना नई बात है इनके तरफ से तो, क्योंकि ये तो एक एनआरओ की इतनी मोटी किताब है जिसके तकरीबन अगर 100 पेजेस थे 95 यूज कर चुके हैं एनआरओ दे के। अच्छा। अब सिर्फ थोड़े से रह गए, वो भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन बोलने के लिए एक चीज है, मैं एनआरओ नहीं दूंगा। तो अब ये एनआरओ नहीं है तो ये एक्सप्लेन करेंगे अब्बासी साहब क्या है। एनआरओ तो वो नहीं देंगे तो देखें, शहबाज शरीफ साहब ने बाहर जाना है। हाँ। वो बाहर जरूर जाएंगे, उनका राइट बनता है। उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। पहले तो इनको शर्मिंदगी होनी चाहिए कि उन्होंने उनको 2 दफा जेलों में बंद किया और कोर्ट के ऑर्डर्स पढ़ ले कि कोर्ट ने क्या लिखा है। पहली दफा सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिखा था कि हम पूरा केस ढूंढते रहे, हमें तो करप्शन कहीं नजर ही नहीं आई। हाई कोर्ट ने क्या लिख के दिया। अब उसके बाद अगर थोड़ा सा इनमें, वो तो नहीं मैं ख्वाजा आसिफ के फेमस अल्फाज यूज करूंगा, हाँ। तो बट इतना काफी है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी सी भी शर्म, उससे थोड़ा कम करूंगा, थोड़ी सी भी कोई शर्म होती है। हाँ। तो बल्कि आप ये कहते हैं जी वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, हमने जेलों में डाला है आपको। हाँ। रेफरेंसेस बनाए हैं हमने। मुझे तो वो स्ट्रॉन्ग, वैसे बात साहब जो स्ट्रॉन्ग वर्डिंग थी ना कि ये मैं इनको, ये बाहर जाना चाहते हैं, वहां पे रहना चाहते हैं, ये फरार हो रहे हैं वहां पे, हम इनको फरार नहीं होने देंगे। और उसके बाद आपने एक ईसीएल में नाम, तो उस ब्लैक लिस्ट में नाम डाला। क्या हो गया देखें। हाँ। ये भागना आगे, मियां साहब, बड़े मियां साहब बीमारी थी, उनको बीमार थे, उसके बाद वापस नहीं आए। हाँ। उनके सारे हसन हुसैन और उनके सलमान शहबाज और अली इमरान और इसाक डार और सुप्रीम कोर्ट में भी ये कंटेस्ट करना था ना। हाँ। हमने उनको नहीं जाने देना था। हाँ। और वो नहीं गए। याद नाम का मतलब कोई और काम नहीं है हुकूमत में रह गई जी। आप उनके अली इमरान, मुझे नहीं याद है। पहले आप मेरा जवाब सुन लें। जी। मैं अवामी नुमाइंदा हूँ। पब्लिक फंड्स जो भी चोरी करेगा उसको पकड़ने के लिए मेरा ये हक है। अली इमरान यहाँ जलजिले के पैसों में मतलूब है। मियां साहब 4, 5, 12, 13 केसों में मतलूब हैं, सजा याफ्ता हैं, यहाँ वो मफरूर हैं। उनकी बात नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा। सही हो गया, वो कर लिया आपने बात। अब ये शहबाज साहब ये बातें क्यों नहीं कही? शहबाज साहब ने फरार होने से रोक लिया। उन्होंने हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट का केस वापस कर लिया। कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से ये फैसला हुआ वो ठीक नहीं था। तो मामला खत्म। शहबाज साहब हमारी कस्टडी में, अब इसके आगे मामले की जरूरत नहीं है। नहीं, आपने वो उन्होंने ले लिया वापस, वो तो चले, वो तो उनकी तो रीत है। एनआरओ तब होता, वो तो रीत है। जब वो मियां साहब को हमने एनआरओ दे दिया उनकी बीमारी का सोच के, वो हमने बड़ी गलती की। ना, उनको हमने जाने नहीं दिया। जो कानूनी ऑप्शन था वो हमने इस्तेमाल किया। इन्होंने तो कहा कि गैर कानूनी है, हमने कंटेम्प्ट किया। लेकिन आज कोर्ट ने कह दिया कि जिस तरीके से हमें पता ही नहीं, हमारे इदारों को पता ही नहीं, और उनको निकाल दिया गया उस लिस्ट से, और वो रातों रात वो भागने के चक्कर में एंड टाइम पे पकड़े गए जहाज पे चढ़ते हुए। तो वो कोर्ट ने हमारा, बहरहाल ये खैर सगाली की बात है। बजट से पहले तब होती, क्योंकि बजट के दौरान आपको जरूरत पड़नी है। आपको खैर, अगर मियां शहबाज शरीफ जो एकदम बीमारी का इलाज करने जा रहे थे, उनको हम जाने देते, फिर तो ये है ना, हमारी बात पूरी होगी, बस खत्म। हमें क्या जरूरत, हमने उनको नहीं जाने दिया। आप मियां शहबाज शरीफ के जमाने में जब उनको आपने रोका, उसके बाद के स्टेटमेंट्स सुनवाए आपको? नहीं, जो भी देखिए मेरी, वो मुल्क से बाहर जाना चाहते थे, हम समझते थे कि वो मियां नवाज शरीफ भागे हुए हैं, उनके जामिन ये हैं, इनको नहीं जाना। अगर वो अब ईसीएल पे नाम निकलवाने के लिए आपको दरखास्त दायर अब देंगे ना, अब उनको जाना है तो उन्होंने देना है, तो फिर क्या करेंगे? बात याद रख ले। हाँ। एक दफा हमने गलती की, मियां साहब की, वो जो भी बहाने थे, जो भी था, हमने उन पे एतबार किया। उसके बाद जो कुछ उन्होंने वहां जाके किया, हाँ। ना एक दिन डॉक्टर के पास गए, ना कोई इलाज कराया। अदालतें बुला रही हैं, उनके लिए ढोल बजा रही हैं, उनको इश्तिहारी मफरूर करा दे रही हैं, वो नहीं आ रहे। आप पूछ रहे गलत पार्टी से, इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। जी इनके पास अदरवाइज ना पहले फैसला इन्होंने किया था, ना अब इनका फैसला। बस साहब उन्होंने इनके पास कोई इख्तियार नहीं। आप कौन है? ये बयान लेके वापस ले लेते हैं। ये तो वो हैं जिन्होंने बयान दिया था कि हमारी पता नहीं कहाँ, पहले तो रात को मिलते रहे, वो इनकार करके, फिर उन्होंने कह दिया मिलते रहे, फिर इन्होंने कहा कि मेरी सुलह होगी, पता नहीं हमारी सुलह होगी किधर से। दूसरी पीपल्स पार्टी बाद में बयान वापस लेना पड़ेगा। ये कितना दुरुस्त है कि जरदाई साहब पे बड़ा प्रेशर है कि वो मुल्क से चले जाएं और वो नहीं जा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि जिसे ट्रू अपोजिशन कहते हैं और जो इंतकामी कार्रवाइयां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भुगती हैं, और कभी हमने तो ये फरमाइश भी नहीं की कि हमारे नाम ईसीएल से हटा दिए जाएं, बावजूद इसके कि 2 किस्म के कवानीन हमने देखे। डिवाइड के अदर साइड पे जहां पे करप्शन के हैवी चार्जेस होते हैं। अभी आप बात कर रही थी कोई ईसीएल की, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात चल रही थी कि शहबाज शरीफ साहब का नाम जो है उसको
रिमूव करने पे गौर भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो मुझे हंसी भी आ रही थी, ताज्जुब भी हो रहा था कि आप देखिए कैसे कैसे जो है चीजें हमें सीखने को मिलती हैं रोजाना। एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हम रोज बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। जो ही वजीर आजम के एक मुशीर के करप्शन के पर इल्जामात लगते हैं, वो दूसरे दिन मुल्क छोड़ के बाहर दुबई पहुंच जाते हैं, फिर शोर होता है कि जी आप अपने लोगं को तो ईसीएल में नहीं डालते। वजाहत आ गई है कि वो शायद पर्सनल विजिट पे है, वापस जिस विजिट पे भी गए हों, किसी भी पर्सनल विजिट, मेडिकल विजिट या किसी भी विजिट पे गए हों, गए तो थे ना। तो उनका नाम ईसीएल पे नहीं था, पहले भी एक दफा ब्लैक लिस्ट से नाम हटा दिया गया था, लेकिन जब वो गए तो फिर शोर होने लगा कि जी हुकूमत के अपनी तरफ तो लोग जब करप्शन के एलिगेशंस उनके ऊपर लगते हैं तो उनके लिए तो कोई ईसीएल नहीं होता और दूसरों के लिए ईसीएल होता है। तो वो प्रेशर कुछ ज्यादा बढ़ रहा था और ये हुकूमत प्रेशर ले नहीं सकती। उसके बाद फौरन से आपने देखा कि जो चीजें सामने आ रही हैं, तो मस्ट बी, मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम राइट, बट दिस इज माई ओपिनियन। मुझे ऐसा महसूस होता है कि जब हुकूमत पे थोड़ी प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ कि भाई आप दोहरा मयार क्यों रख रहे हैं। लेकिन ये बजट से पहले स्टैंडर्ड्स क्यों है? ये बजट से पहले क्यों क्या? देखिए बजट वाली बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। बजट के एक बहुत बड़ा प्रेशर है इस हुकूमत के ऊपर। इन्होंने देखा कि सेनेट के इलेक्शंस हुए, यूसुफ रजा गिलानी साहब को कितने वोट मिले, इन्होंने देख लिया कि इनकी तादाद जो है, लोग इनसे कितने खाइफ है। इन्होंने जहांगीर तरीन वाला फैक्टर भी देख लिया। इन्होंने अपने अपोजिशन से क्या खतरा है, वो तो इतनी अच्छी। देखिए अब आप जी ये बात जो आप कर रही है ना, दिस इज अगेन वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। और कल वजीर आजम ने आपने कितना रहम खाया, तरस खाया, बेचारे ये तो मतलब मुझे उनको तो देखें, हुकूमत को तो अपने ऊपर तरस खाना चाहिए। एक ऐसी हुकूमत जिसने 2.5 सालों के अंदर अपने जो वादे किए उन वादों के ऊपर वफा करने के बजाय उन्होंने जो लोगों के ऊपर महंगाई की सुनामी लेकर आए हैं और जो लोग अपने कान पकड़ के तौबा तौबा कर रहे हैं, दवाई लेने की लोगों की ताकत नहीं रही, रोटी लेने की ताकत लोगों की नहीं रही, लोग खुदकुशियां करने पे आगे, ये किस बात पे आप दूसरों पे तरस खाते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऐसे एरोगेंट थे कि एक हेड ऑफ द फैमिली अपने सारे खानदान के सामने एरोगेंस ऐसी कर रहा हो कि जी एज इफ के हमने सब कुछ अचीव कर लिया और 4 दिनों से फाका हो उस घर में। क्योंकि रियलिटी क्या है? रियलिटी तो ये जो वजीर आजम साहब को पता होना चाहिए रियलिटी, या वो जिक्र नहीं करते, वो बिल्कुल ऐसे करते कि उन्होंने पता नहीं क्या अचीव कर लिया। 2 करोड़ लोग हम गुर्बत की लकीर से ऊपर लेके आए थे, इन्होंने 2 करोड़ लोग नीचे धकेल दिए। ये आज के फिगर्स हैं। 50 लाख जॉब्स लूज कर चुके हैं पिछले 3 साल में। आप कौन से फिगर्स को कोट करें, क्योंकि गवर्नमेंट तो कह रही है कि कोई गवर्नमेंट ने कोई डिनाई नहीं किया। मैं कहता हूं कि मैंने ये सारे हमने फिगर्स रिलीज किए, गवर्नमेंट डिनाई करते, पार्लियामेंट में जाके डिनाई करते। इन्फ्लेशन की फिगर हम वही लेते हैं, नंबर जो ये देते हैं। नहीं, कल फवाद साहब ने कहा कि आमदनी में इजाफा हुआ है। एक सेकंड, आमदनी में इजाफा किसके मुकाबले में? अपने बुरे साल के मुकाबले में। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन। पहले आपने $1650 पर कैपिटा इनकम थी पाकिस्तान की जब हमने छोड़ा था, ये गिरा के उसको लेके चले गए 1350। लेकिन और फिर वापस कोई नहीं है, आपसे खतरा कोई नहीं है गवर्नमेंट को, आपसे नहीं है, उनको खुद से खतरा हो। 22 करोड़ अवाम से अगर खतरा नहीं उनको महसूस होता ना, तो फिर वो यहाँ से कूच कर जाए। अगर उनको एहसास नहीं है, उनकी फिक्र नहीं है अवाम की कि गुर्बत में, बेरोजगारी में, महंगाई में पिस गए हैं लोग। ये तीन यार्ड स्टिक्स होते हैं। आप किसी से क्या पूछ लें? नहीं, वो उस पर मैं करती हूँ बात, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को अपोजिशन से खतरा नहीं है, अपनी जमात से तो खतरा है ना। वो तरीन साहब जो है वो सबसे पहले जुल्फी बुखारी, और एक मुझे इतराज है कि आपने उसको क्यों नहीं बुलाया, जहांगीर तरीन ग्रुप के नुमाइंदे को? इतनी रेलिवेंट पॉलिटिकल पार्टी हमने शीन को भी नहीं बुलाया। नहीं, ये ना करें ना। चले पीपल्स पार्टी पूरी माशाल्लाह आपने इनको मीम में पक्का कर दिया। अच्छा सुने जी, सबसे पहले तो इनका इंटरेस्टिंग टॉपिक है जुल्फी बुखारी। मुझे वो कानून की शिक बता दे जिसपे कोई अगर कोई एक राह चलता बंदा इल्जाम लगा दे, कोई FIR, कोई इंक्वायरी रिपोर्ट कुछ भी ना हो, तो इनकी मर्जी के लिए जुल्फी बुखारी को, अब बात सुनने, जुल्फी बुखारी को कमरे में बंद कर दे क्योंकि वो कहीं ना जाए। आजाद शहरी है भाई, वो कोई उसने कोई पनामा में उसका नाम आया, उसके कोई लंदन में फ्लैट पकड़े गए, उसका कोई सरे महल पकड़ा गया, उसकी कोई उसके बीवी बच्चों के नाम कोई टीटियां आती रही हैं शहबाज शरीफ साहब की तरह, या उसके कोई जाली फालूदे वाले अकाउंट है। ये ऐसी इनका शौक है। अच्छा मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आ जाओ। नहीं 2 बात आपको सबसे ज्यादा वक्त जुबैर साहब ने जो नहीं, मैं ब्रेक के बाद, अभी प्रोग्राम खत्म थोड़ी हुआ है। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद बजट से पहले हुकूमत कुछ खैर सगाली के मौके दे रही है अपोजिशन को, क्या क्या हो सकता है? क्या हुकूमत NRO दे रही है या ले रही है? ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, अब सदाकत साहब ने जो कहा, सदाकत साहब आप जो बात कर रहे थे, मगर इस वक्त जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर, रीजन के अंदर पाकिस्तान में महंगाई है, ये तो आप मानते हैं ना डबल फिगर में है, डबल डिजिट में है। मैं महंगाई पे आता हूँ। महंगाई हमारा सबसे ज्यादा हमारा मुश्किल पे बात में आऊंगा। नहीं, मुश्किल करंट अकाउंट डेफिसिट की पहले बात नहीं, करूंगा। मैं सबसे पहला मुश्किल पॉइंट है, और अब वाकई महंगाई है, और इतनी ही महंगाई रही है पिछले सालों में। लेकिन बहरहाल जो आपने जो बात की कि जी मईशत नीचे गई, स्कूल बंद है, शादी हॉल्स बंद है, ट्रैवल बंद है। अगर मुझे बात करें, ट्रैवल बंद है, ठीक, आपकी टूरिज्म इंडस्ट्री बंद है, और आधे आधे साल में लॉकडाउन लगते हैं, शॉपिंग मॉल्स बंद हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान ने पिछले साल के मुकाबले में इस साल 4% ज्यादा परफॉर्मेंस शो की है। टैक्स पाकिस्तान का पूरी पाकिस्तान की तारीख का सबसे, कभी 4000 की फिगर नहीं हुई, 4000 से ऊपर चला गया। अच्छा, पाकिस्तान का इस वक्त जो रेमिटेंसेज हैं वो तारीख में सबसे ज्यादा हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ रही है। मैं कहता हूँ पीपल्स पार्टी के जमाने में महंगाई का इजाफा जब हुआ 55%, तो उसमें मैं आपको बताती हूँ, उसमें भी मजदूर की आमदनी में 4% इजाफा हुआ। और जो इनके दौर में भी रियल वेजेस, हाँ, रियल वेजेस, और इनके दौर में भी जो है वो 59% तकरीबन वो इजाफा था, लेकिन आमदनी में भी इजाफा इतना ही होता रहा, ये ज्यादा हुआ। तो ये पीएमएल और पीपल्स पार्टी ने लोगों को अगर आप तनख्वाहों में इजाफा किया, अगर आप मैं बात पूरी कर लेता, मैं कहना चाहता हूँ कि आपके मुल्क का 20% इंडस्ट्री बंद है कोविड की वजह से, तो उसका असर तो आना है ना। पीपल्स पार्टी कहती थी दहशतगर्दी थी हमारे यहाँ बहुत, और थी बहुत दहशतगर्दी का शदीद दहशतगर्दी। जरा अगर आप मुआवजा करें सर, 3 ऑपरेशन आपका पड़ोसी मुल्क है इंडिया, जिसमें -7.5 है इस वक्त, मुल्क तबाह हो गया है। और पड़ोसी मुल्कों की बात करेंगे, बांग्लादेश, मैंने आपको श्रीलंका की, नेपाल की, आपकी सारी नहीं करने दे बात, करने दे, बोलने दे आपने वो फिगर, ये मैंने नहीं बोला। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कोई नाराज नहीं हो रहा, नहीं, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि बात लोगों तक जाने दी कि 20% मुल्क बंद है, ठीक है, 80% मुल्क चल रहा है, 80% पिछले साल से 4% ज्यादा आउटपुट दे रहा है, रिकॉर्ड प्रोडक्शन हो रही है, गंदम की रिकॉर्ड प्रोडक्शन हो रही। हाँ, महंगाई बिल्कुल है। आटा आपने रिकॉर्ड सरप्लस गंदम पैदा किया, आटा अभी भी इतना महंगा है, सारी चीजों में। चीनी 110 रुपए किलो है, चीनी में आपने इतना कमाल कर दिया। अच्छा, मैं आपको देखिए ना, ये नहीं सवाल आप मुझे करें, मैं महंगाई का जवाब मैंने देना। पिछले जल्दी दे दे तो फिर, हाँ, तेल की कीमतें डबल होगी। पूरी दुनिया में कोरोना में सप्लाई चेन इफेक्ट हुई, पूरी दुनिया में फूड इन्फ्लेशन है, सारा आपका पाम ऑयल इंपोर्ट होता है, उसकी वजह से महंगाई है। आपकी करेंसी, इनके खजाने की वजह से डिवैल्यूएशन ठीक हो गया। पाकिस्तान समझ में आ गई, अल्लाह ताला के फजल करम से लूट मार से निकले, तेल में इजाफा नहीं किया, पाकिस्तान के खजाने की हालत बेहतर हुई। पिछले 4 सेशन गुजरे हैं, तेल की कीमत इजाफा नहीं किया। सर, तेल की कीमत में 4 समरियां मुस्तरद। आप फूड इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में है ना इनके हिसाब से, लेकिन हमारे पूरे खित्ते में डबल से ज्यादा है माशाल्लाह। भाई फूड इन्फ्लेशन जो इंटरनेशनल इफेक्ट्स हैं, तो वो श्रीलंका पर, भूटान पर, नेपाल पर। सलीम साहब ने एक ट्वीट भी किया था, और वो सही हमने चेक भी किया। मैंने अच्छी बात है, उनकी पहले बात सुन ले, 20% बंद है और 4% ग्रोथ हो रही है। 4% का बिल्कुल आसमां आपके नाजरीन के लिए ये ऐसे है कि किसी की तनख्वाह 200 रुपए हो और उसकी घट के 100 रुपए हो जाए अगले साल, और उसके बाद उसकी 150 हो और वो ढोल बजाने शुरू कर दे, तो खानदान वाले भी जूते लगाएंगे कि भाई आपकी 200 होती थी, अब आपकी 150 है। आप आप मुवाजना कर रहे हैं 100 से, जो गिरनी नहीं चाहिए। दूसरी चीज एक्सपोर्ट्स का, माजरत के साथ जरा इनकी मैं फिगर्स करेक्ट कर दूं, 3 साल के बाद भी ये क्लोज करेंगे एक्सपोर्ट की फिगर लोअर देन वे वी लेफ्ट कोरोना। सुन, अब आ जाए टैक्स कलेक्शन की, जिस पर ट्वीटें करते हैं इनके प्राइम मिनिस्टर। 3 साल में, क्योंकि अदवार का पूरा देखा जाता है, 3 साल में 16-17% टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हुई है। इन्फ्लेशन आपको पता है कि उससे पता नहीं कितने गुना ज्यादा हुई है। सो माइनस में हम 5% पर एनम ग्रो किया इनका टैक्स कलेक्शन। अगर 3 साल कर ले, हम 20% पर एनम ग्रो कर रहे थे। किससे मुकाबला कर रहे हैं? अभी भी इसमें भी इंपोर्ट्स, चूंकि ग्रोथ रेट की बार बार बात हो रही है, तो इंपोर्ट्स में जो पहले इन्होंने पाबंदी लगाई थी उसमें अब इजाफा कर दिया है, तो उसकी वजह से नेचुरली ये हुआ है। लेकिन आप दोनों
दोनों जमातें जो इस वक्त बैठी हैं, उनसे लोग जितने हुकूमत से मायूस हो रहे हैं उससे ज्यादा अपोजिशन से मायूस हो रहे हैं। देखिए बात यह है कि आसमा, पाकिस्तान इज अ वेलफेयर स्टेट। जब हम ये कहते हैं एक वेलफेयर स्टेट, तो उसकी जिम्मेदारी होती है अवाम के लिए ऐसी सहूलियात पैदा करना और उनकी जिंदगी उनके लिए आसान बनाना, ना कि मुश्किल कर देना। ये बात हकीकत है कि इस हुकूमत ने आते ही, ये कोविड की बात कर रहे हैं ना सदाकत अब्बासी साहब, इन्हें पूछिए कि कोविड से पहले आपके जो फिगर्स नीचे गए हैं, जो जीडीपी आपकी ड्रॉप होके जो मनफी पे जाके पहुंच गई थी, ये तो कोविड से पहले की कहानी है। इन्होंने फिगर फजिंग की। फ्लोर ऑफ द हाउस जो प्रीवियस इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने गलत बयानी की, गलत फिगर्स उन्होंने कोट किया, और ये पार्लियामेंट में हमने हाईलाइट किया इन चीजों को कि गलत बयानी कर रहे हैं, ये फिगर्स फज कर रहे हैं। बिल्कुल जी, अभिषेक साहब। और उसके बाद आप ये देखिए, ये मैं आपको बता रही हूँ प्रीवियस बजट की बात। और फिर इकोनॉमी में अगर आप देखें तो शौकत तरीन साहब जो खुद आने से पहले कहते रहे कि जी 2.5 साल से इकोनॉमी डामाडोल थी और ये एक बिजनेस फ्रेंडली इकोनॉमी का स्ट्रक्चर इन्होंने बिल्ड ही नहीं किया, इन्होंने एक माहौल ही क्रिएट नहीं किया। उसकी वजह यूं कि आते ही इन्होंने 13.25% जो इंटरेस्ट रेट लेकर चले गए, उससे नुकसान किसका हुआ? कारोबार तबाह हुआ, लो स्केल इनकम, लो स्केल के जो कारोबार है, इंडस्ट्रीज हैं, वो इफेक्टेड हुई। और उसके बाद आप देखें आटा, घी, दाल, चीनी, एक आम आदमी से पूछे जो शायद पहले 1000 रुपए में अपना कोई जाके ग्रोसरी कर आता था, आज के जमाने में 1000 रुपए की कोई वैल्यू नहीं रही है, कोई वर्थ उसकी नहीं रही है। और दूसरी बात, अच्छा फिर आप ये देखें कि एक्सपोर्ट की बात आप देखें तो लोगों ने सिर्फ टमाटर तो नहीं खाने ना, लोगों ने चाय में चीनी भी डालनी है, लोगों ने पत्ती भी इस्तेमाल करनी है, लोगों ने घी भी लेना है, लोगों ने दालें भी बच्चों को खिलानी है, लोगों ने दालें भी खिलानी है। एक सेंटेंस सिर्फ बोल दूं, ये जो महंगाई है ना, इसकी सिर्फ एक ही वजह है, बिकॉज अगर आप करप्शन जब करते हैं ना तो उससे बढ़ती है। अच्छा, देयर यू गो। मैं आपको इस पे चीनी का स्कैम, ये जो करप्शन में इजाफा होता है उसकी सबब महंगाई को करप्शन से रिलेट किया ही पीटीआई के लीडरशिप ने था। और दूसरी बात आसमा, ये देखें कि 2.5 साल के अंदर 15,000 अरब कर्जा लेने वाली हुकूमत दूसरों को क्या आईना दिखाएगी? अब ये मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद अब इस पे जरूर बात करेंगे कि अब हुकूमत जो बजट पेश करने जा रही है उससे आम जिंदगी के ऊपर बहुत ज्यादा असरात होंगे, लेकिन अपोजिशन के पास ये चांस है कि वो इसको नाकाम कर दे, इस मालियाती या बिलावल साहब कहते हैं IMF बजट, IMF या जो व्हाटएवर, उसको नाकाम कर सकती है अगर मुत्तहिद हो। क्या आवाम के लिए मुत्तहिद होगी? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब जुबैर साहब देखिए, अभी अब बिलावल साहब का भी आपने सुना, उन्होंने कहा जी बजट आ रहा है, फिर उन्होंने आपकी तरफ एक ब्रांच ऑफ ऑलिव जो है, ऑलिव ब्रांच वो पेश की है, फॉरवर्ड की है। तो PMLN तो उसी तरह डटी हुई है कि माफी मांगे और ये करें और वो करें। क्या बजट सेशन के अंदर आप लोगों को इकट्ठे होकर बात नहीं करनी चाहिए? अभी हमजा शहबाज कौन सी पार्टी से ताल्लुक है उनका? वो तो राय दे रहे थे ना, उनकी बात तो राय नहीं, बट उस ये 30 साल से कर रहे हैं सीनियर नून, कोई सीनियर नून नहीं है, बट हमजा शहबाज इज द सीनियर लीडर। और उनकी आप तो वो चला भी रही है कि वो एक रिकंसिलिएटरी बयान दे रहे हैं। बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया। क्वेश्चन ये है कि देखिए उन्होंने बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात की है ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सी चीजें जो हैं बैक स्टेज पे चली जाती हैं। ये कोई हमारी कोई कश्मीर की जंग तो हो नहीं रही है, और अगर हमारे जो कंसर्न्स हैं वो PDM के हवाले से थे, पार्लियामेंट के अंदर हमने बिल्कुल कहा है, खुल के इजहार किया है कि पार्लियामेंट में हम खास तौर पर बजट के लिए हम जरूर मिलके बैठेंगे, और ताकि हमें हमारे ऊपर रिस्पांसिबिलिटी है 22 करोड़ आवाम की। इसके लिए जो नून ग्रुप या मीम ग्रुप जो भी है वो मान जाएगा? कोई मीम और नून नहीं। अच्छा। क्या मीम नून, मुझे तो आज तक समझ में बड़े मियाँ साहब तो है ना आपके, नवाज शरीफ साहब तो है, उन्होंने वीटो कर दिया अगर तो कि भाई नहीं करना, क्योंकि मफामत पे उन्होंने फैसला महफूज कर लिया है। मजामत या ये जो आप कह रहे हैं ना महफूज कर लिया, कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट तो नहीं आने वाली। सर ये रिपोर्ट तो बाकायदा उन्होंने कहा है कि मैं ये महफूज कर रहा हूँ अपनी राय और मैं बताऊंगा इसके ऊपर। नहीं तो आप क्या समझ रही हैं कि जिस दिन वो मिसाल के तौर पर 2 ही फैसले हो सकते हैं ना आपके मुताबिक, या तो लड़ाई करेंगे मुफाहमत या मुजाहिमत। तो जिस दिन अगर वो कहेंगे मुजाहिमत तो हम क्या बाहर निकल जाएंगे? एक बड़ा सिंपल सा जो हमने कहा है, व्हाट इज आवर पॉलिसी, जो कहते हैं कि मुजाहिमत या मुफाहमत। हम कहते हैं कि जी अगर आप शहबाज शरीफ को उठा के अंदर बंद करते हैं या मरियम नवाज को या हमजा शहबाज को या किसी लीडर को, तो हम शोधनी में जाएंगे, हम रिएक्ट नहीं करेंगे, हम आवाज नहीं कसेंगे, हम तमाम वो फोरम्स
तमाम वो तो पुलिस मुशावरत का क्या कॉन्स्टिट्यूशनल सुन फायदा? लें, हाँ। कौन सा फोरम हमने आज तक इस्तेमाल किया जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बैरियर्स को क्रॉस किया? नहीं किया ना। ठीक। कोर्ट गए, कचहरी गए, आवाज उठाई, यही किया ना। आप लोग कहते हैं ये मुजाहिमत है। हाँ। अब ये आप जब उसको पीपल्स जैसे भी पार्टी डिफाइन करती है करें। तो सर आप कहते हैं कि उन्होंने डील कर ली थी पीपल्स पार्टी ने, इसलिए वो ऐसी बातें कर रही है। वो भी तो यही बातें कर रही थी। कौन सी बातें? पीपल उन्होंने कहा इस्तीफे नहीं देने, इसके अंदर रह के नहीं, करना है। इस्तीफे उन्होंने कहा आईनी इस्तीफे चेंज नहीं करना है। देने उन्होंने पर कहा हमने डील नहीं कहा। हाँ। इस्तीफे देने पर हम ना देने पर हमने डील नहीं कहा। हमने ये कहा था कि जो उन्होंने एक सबोटाज किया था पीडीएम में, जब लॉन्ग मार्च और इस्तीफों की बात थी और जरदारी साहब ने कहा था कि जी मियां साहब वापस आए तो हम इस्तीफे दे देंगे। अच्छा। जाहिर सी बात है वो चाहते तो थे भी नहीं। उनका अपना रीजन है ना इस्तीफे ना वो तो देने पहले का। दिन से कह रहे थे कि तो अपने- फिर हम कह रहे थे कि आप इसको क्यों बहाना अच्छा बना रहे हैं? अच्छा, अब ये आप लोग इकट्ठे हो सकते हैं, फिर मैं फाइनल, चूंकि इनको पास टाइम लगेगा क्विकली, कि आप लोग बढ़ सकते हैं इनकी तरफ, इनकी कदम बढ़ा सकते हैं हमजा की बात पे। देखिए, बात यह है कि हमारा मौकफ बिल्कुल वाजे है कि ऑपोजिशन को एक जो स्ट्रेटजी है उसके ऊपर एक पेज पे आके इस हुकूमत की जो नाकामी है उसके ऊपर पार्लियामेंट में अपना सही तरीके से एक मौसर किरदार अदा करना जरूरी है। और ये वक्त है, क्योंकि हम सब ने आगे अवाम के पास जाना है इलेक्शंस में वोट के लिए। ये हुकूमत जो बैठी हुई है सामने, इन्होंने भी जाना है। ये तो इतनी महंगाई कर बैठे हैं कि अवाम ने इनको हर हर बाई इलेक्शंस में उनको रद्द कर दिया। देखिए, ये तो डिपेंड करता है। आपने पीडीएम में देखा कि क्या हुआ, उसके बाद अब पीडीएम बड़ी गलती अगर ये दोहराए ना दोहराए तो तभी बेहतर एक तो इन्होंने कहा कि जी शुरू में जो 13% इंटरेस्ट था, मैं इसकी कहानी बताऊं कि जब हम आए तो 19 अरब डॉलर से ज्यादा का खसारा था। खुदा न खास्ता पाकिस्तान डूब जाता और आज महंगाई पता नहीं। फाइनेंस मिनिस्टर साहब इनके कहते हैं कि बेड़ा घर कर देगा इंटरेस्ट रेट। देखिए, मैंने जुबैर साहब ये कह रहे हैं कि कितनी फाइनेंस बातें की हैं। मिनिस्टर गलत कह रहे हैं। सुने। नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर को मुल्क गलत की- बात है ना। इस मुल्क की तारीख, पीपल्स पार्टी जाती है तो 2.5 अरब डॉलर का खसारा होता है। इस मुल्क का सबसे तारीख का सबसे बड़ा खसारा मुस्लिम लीग यूं में देती है। और पीपल्स पार्टी इनहेरिटेड मच मोर एज अ पाकिस्तान डूब रहा होता है उसी तरह उस से वक्त अगर आपका तो इतना 2.5 साल के अंदर बातों में मैं नहीं बोला, नहीं मुशर्रफ कोई तबाही अगर आप मुझे सारे बात नहीं करने देंगे तो फायदा नहीं, नहीं, हम सवाल पूछ रहे हैं, correct कर रहे हैं। सबसे ज्यादा लाइव टीवी पर इनको पीपल्स चैलेंज कर रहा हूँ। पार्टी- पीपल्स पार्टी को जब 25 हुकूमत मिली थी बिलियन डॉलर की तो थी। करंट अकाउंट डेफिसिट was far more than what they inherited. अच्छा, ये जो मैं चैलेंज कर रहा हूँ टीवी पर। अगर मुझे पीपल्स पार्टी अगर ने आप छोड़ के देखें भी ना, चाहता